and I solved a lot of problems based on star and delta conversion. So I hope you all understand how to solve star delta conversion. In today's lecture, we will discuss about mesh analysis and nodal analysis. Okay. Yes. So here we have discussed about loop or mesh analysis. So what is mesh? We have to know in first or second lecture when students is asked doubt what is mesh, whenever I explain about KVL, Kirchhoff's voltage law. So mesh, you can say mesh is a smallest loop. लूप मतलब क्या होता है? क्लोज पाथ. जैसे ऐसा कोई भी क्लोज पाथ है, इसे एक लूप बोलेंगे. लाइक दिस वन, ये क्या है? ये क्लोज पाथ है. सो दिस इज कॉल्ड लूप. अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन कर दूं, तो ये भी एक क्लोज पाथ है. Tell me. Yeah. The screen is not visible to us. Okay, one second. Now it is visible? Yes, sir. Okay. Yes. Yes, okay. Look, what is loop? No, sir. Students, PPT is visible or not? Tell me. Yes, sir. Now it is visible. Okay. Yes, sir. So, what is loop? Loop means closed path. So, if you have any closed path, that is called loop. For example, if I make one circuit like this, so this is a closed path. So, if it is a closed path, so this is called a loop. But if I join this over here, यहाँ पर एक resistance मैंने लगाया. So in this case, this path, this is a closed path. This is closed path or not? Tell me, students. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, this is a closed path, this path. So this is called a loop. And if I'm talking about this closed path, this is also a loop. So this is first loop and this is second loop. And third, if I start from here and I go and I complete this entire path, so this is called loop number 3. So in this case, we are having 3 closed paths. So we are having 3 loops. And if we are having a smallest loop, अब देखिए L1 जो मैंने बताया, ये लूप एक है. क्या इसके बाद फर्दर इसमें कोई लूप आ सकता है क्या? इसके अंदर कोई लूप है क्या? No. नहीं. L2 के अंदर कोई लूप क्या? L2 के अंदर कोई लूप है क्या? नहीं. मीन्स अगर L1 और L2 के अंदर कोई लूप नहीं है, तो इनको मेश बोलेंगे. क्या बोलेंगे? मेश बोलेंगे. सो मेश का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? मेश इज अ स्मॉलेस्ट लूप. क्या हो जाएगा? मेश इज अ स्मॉलेस्ट लूप. वो एक ऐसा लूप जिसके अंदर फर्दर क्लासीफाई ना कर सके, यानी वो लूप जो सबसे छोटा लूप हो, उसको क्या बोलेंगे? मेश बोलेंगे. तो यहाँ पर देखिए L1 को फर्दर क्लासीफाई नहीं कर सकते, L2 को फर्दर क्लासीफाई नहीं कर सकते. इसका मतलब क्या हो गया? L1 भी एक मेश होगा और L2 भी क्या होगा? एक मेश होगा. टेल मी स्टूडेंट्स, L3 मेश होगा क्या? No. No. L3 is not a mesh. Why? Because L3 is starting from this point. यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये कंप्लीट हो रहा है.
L3 के अंदर वी आर हैविंग टू लूप्स, L1 एंड L2. सो अगर कोई भी ऐसा लूप जिसके अंदर फर्दर क्लासीफाई हो जाए तो ऐसे लूप को मेश नहीं बोलेंगे. गॉट इट स्टूडेंट्स? Yes. ओके, सो मेश का डिफिनेशन क्या हो गया? मेश इज अ स्मॉलेस्ट लूप which cannot be further classified, which cannot be further classified. Got it, students? Yes. Okay. Second thing, we have to apply KVL equations on particular mesh. यानी जितने भी मेश आपके पास आ गए उन सभी मेश पे KVL अप्लाई करना है. क्या करना है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करना. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए सिर्फ केवीएल और मेश एनालिसिस पे क्या डिफरेंस होता है. अब देखिए वहां पर हमें क्या होता था कि वी हैव टू लुक ओनली वन ब्रांच, हमें एक ब्रांच के बारे में ही देखना पड़ता था. बट यहाँ पर क्या देखना है? पूरे मेश के बारे में देखना. सो केवीएल में जब हमने देखा था तो एक ब्रांच पे कितना करंट फ्लो हो रहा है वो चेक किया था. But in this case, when we are applying KVL in a mesh, so what we have to look? We have to look a current in entire mesh. So क्या difference हो गया बेटा? वहां पर हमने देखा था कि current in a particular branch. क्या देखा था? Current in a particular branch. But in this case, when we are going to apply mesh analysis, we are टेक केयर अबाउट मेश करंट, यानी पूरे मेश में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके बारे में देखेंगे. ये बात क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? क्या देखना है? फर्स्ट पॉइंट की मेश है या नहीं. हमने देखा स्मॉलेस्ट लूप है तो मेश हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकंड पॉइंट क्या चेक करना है? मेश करंट देखना है. मेश करंट देखना है. केवीएल में हमने क्या देखा था? ब्रांच करंट देखा था. क्या देखा था? ब्रांच करंट देखा था. सो हमें देखना है मेश करंट. आप देख सकते हैं इंस्टेड ऑफ मींस उसके, हमने अगर केवीएल में हमने ब्रांच करंट देखा था तो यहाँ पर ब्रांच करंट नहीं देखेंगे. क्या देखेंगे? मेश करंट देखेंगे. ओके, सो दीज 2 पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. ये पॉइंट क्लियर हो गया ना? तो देखिए डिफिनीशन आप नोट करेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ इरेज करके. लो फर्स्ट पॉइंट क्या है? दिस मेथड इज यूज्ड फॉर अ सर्किट दैट वी हैव मैनी लूप्स. अब यहाँ पर बहुत सारे लूप्स होंगे तो वहां पर हम लोग मेश एनालिसिस अप्लाई करेंगे. बहुत सारे लूप में सबसे पहले क्या करेंगे? सेपरेट स्मॉलेस्ट लूप. क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे स्मॉलेस्ट लूप, जिनको क्या बोलेंगे? कॉल्ड मेश. इनको क्या बोलेंगे? मेश बोलेंगे. ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है? द डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ, जहां केवीएल अप्लाई किया था, एंड लूप एनालिसिस. किरचॉफ्स लॉ लूप एनालिसिस में क्या डिफरेंस है बेटा? दैट ब्रांच करंट, वहां पर देखिए वहां पर हम लोगों ने जो लूप एनालिसिस पे यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? लूप करंट. इसको क्या बोलेंगे? मेश करंट भी बोलेंगे. मेश करंट देखेंगे इंस्टेड ऑफ ब्रांच करंट. हमने वहां पर ब्रांच करंट देखा था बट यहाँ पर क्या देखेंगे? मेश करंट या लूप करंट देखेंगे. ओके, yeah, third point. The other difference is each branch may carry more than one current, which is not there in KVL. KVL में हमने देखा था कि पर्टिकुलर ब्रांच में एक करंट फ्लो हो रहा था, बट यहाँ पर मेश में क्या देखेंगे कि अलग अलग करंट्स हो सकता है. एक पर्टिकुलर ब्रांच में दो डिफरेंट करंट भी फ्लो हो सकते हैं, ऐसा हम देखेंगे. केवीएल में क्या था? ओनली सिंगल करंट, बट इन मेश वी कैन अप्लाई more than one current. The advantage of this method is that for complex network, the number of unknown reduces, which simplifies calculation works. So ये basically क्या है? इसका advantage क्या है? That mesh analysis we can apply in a complicated network. जैसे complicated means कैसा होगा? देखो मैं आपको एक complicated network draw करके दिखाता हूँ. ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है.
सो यहाँ पर सिंपल केवीएल अगर आप बात करते तो अप्लाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पर क्या अप्लाई करना पड़ेगा, मेश एनालिसिस अप्लाई करना। So if you are having a complicated network and you want to find the value of current in each and every branch, what we have to do? We have to apply mesh analysis. Okay, students? या एक्सप्लेनेशन कैसे अप्लाई करेंगे देखेंगे यहाँ पर। ये मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं कि ये मैंने एक सर्किट ड्रॉ किया हुआ। इस सर्किट में यहाँ पर V1 वोल्टेज है, यहाँ पर V2 वोल्टेज है, R1, R2, R3 रेजिस्टेंस। Okay, so tell me how many mesh are there? Two mesh. एक मेश क्यों? मेश क्या होता है, स्मॉलेस्ट लूप होता है, तो एक स्मॉलेस्ट लूप है तो एक ये मेश हो गया, और एक स्मॉलेस्ट लूप है तो उसमें दो मेश हो। नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, फर्स्ट मेश के बारे में बताइए। अगर हम फर्स्ट मेश में सॉल्व करना है, सो हमें सबसे पहला काम क्या है, करंट सपोज करना पड़े। सो करंट का डायरेक्शन आप कैसे सपोज करेंगे? तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, ऑलवेज यू कैन सपोज इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इट इज नॉट फिक्स्ड स्टूडेंट्स, it is not fixed. Either you can suppose in a clockwise direction or you can suppose in an anti-clockwise direction. Both cases are possible. But I am recommending you that you have to suppose like clockwise. So in mesh 1, I suppose that current is flowing in a clockwise direction and that value is I1. Likewise in mesh 2, I suppose that value of current is I2 which is flowing in a clockwise direction. मतलब क्या है कि दोनों मेश में अलग अलग करंट आपको सपोज करना है, ये आपको करना है सॉल्व करने से पहले। So I suppose I1 in mesh 1 in a clockwise, I2 in a mesh 2 in a clockwise. ये पॉइंट क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? Students, is it audible or not? Tell me. Yes sir. Yes sir. Okay. यस ओके। सो देखिए, मेश 1 में I1, मेश 2 में I2। अब क्या है कि अब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में करंट चेक करेंगे कितना फ्लो हो रहा है। तो मुझे बताइए R1 में कितना करंट फ्लो हो रहा है? I1। वेरी गुड। देखिए ना, ये क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये I1 करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, ऐसे कैसे फ्लो हो रहा होगा, ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा और यहाँ पर जाएगा। तो ये पूरे सर्किट में I1 फ्लो हो रहा है। तो ये जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है ये I1 के लिए दिखाया है। तो देखिए R1 में करंट कितना जा रहा है, I1 करंट। लाइक भाई R2 में कितना करंट जा रहा है बेटा, टेल मी। वेरी गुड। तो ये कैसे फ्लो हो रहा होगा, ये पूरा ऐसे फ्लो हो रहा होगा, ये ऐसे करंट फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट में। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट R2, दैट करंट इज फ्लोइंग, दैट इज I2। नाउ आई एम हैविंग R3। What I am having? R3. So tell me students, R3 में कितना करंट फ्लो हो रहा है? I1 minus I2. Yeah, very good. I1 minus I2. But how you can decide that it is flowing I1 minus I2? Why it is not I2 minus I1? Can you tell me? Anti-clockwise ना? No, it is a clockwise direction. And suppose clockwise direction. I am asking that. वही clockwise। Yeah. In R3, you are telling that current is flowing I1 minus I2. You are telling, yes, it is right. I am telling current is flowing I1 minus I2. So it is right or wrong? Tell me. आपने बोला करंट I1 minus I2 फ्लो हो रहा है, पर मैं बोला I2 minus I1 फ्लो हो रहा है। So क्या मैंने गलत बोला क्या? No. Okay. So according to you, current is flowing I1 minus I2. Okay, but I am telling current is flowing I2 minus I1. Both are right, beta. Both are right. But what will be the change? डिफरेंस क्या है यहाँ पर? अगर मैंने बोला दोनों सही है तो डिफरेंस क्या है? अब देखो केवीएल याद करो जो मैंने आपको सिखाया था। करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये पॉइंट याद है? Negative. Yes. Okay, so if I suppose here plus is there, here minus is there, तभी तो ये फ्लो होगा ना लेफ्ट टू राइट। हमने देखा कि I1 करंट लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। तो पहला टर्मिनल क्या होगा बेटा, पॉजिटिव, और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव। R2 के केस में भी पहला टर्मिनल पॉजिटिव होगा और सेकंड क्या होगा, नेगेटिव होगा। यस, टेल मी अबाउट R3। इफ आई पुट प्लस ओवर हियर एंड माइनस ओवर हियर, दैट मीन्स अगर मैंने ऐसा लिखा कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब करंट नीचे जाएगा।
और ये अगर करंट नीचे जाएगा तो करंट होगा I1 माइनस I2। क्यों? तो किसकी डायरेक्शन पे जा रहा है? देखिए I1 नीचे आ रहा है, यहां पर देखिए R3 में I1 नीचे आ रहा है और I2 ऊपर जा रहा है। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? डायग्राम में देख रहे हैं ना, I1 नीचे और I2 ऊपर। अब नीचे आ रहा है, इसका मतलब प्लस ऊपर होगा, माइनस नीचे होगा, तभी ये नीचे आएगा। और अगर मैंने बोला I2 ऊपर जा रहा है, इसका मतलब प्लस यहां पर होगा और माइनस यहां पर होगा। तो इसको देखो ड्रॉ करके मैं बताता हूं आपको। I1 इस डायरेक्शन पे, प्लस और माइनस, दिस इज I1। मैंने बोला I2 ऊपर, I2 ऊपर, इसका मतलब प्लस यहां पर और माइनस यहां पर। मैंने इसको रिजल्टेंट लिखा। रिजल्टेंट में मुझे क्या चाहिए? नीचे की तरफ चाहिए। नीचे की तरफ चाहिए मतलब ये प्लस होना चाहिए और ये माइनस होना चाहिए। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? I1 माइनस I2। अगर इसी सेम डायग्राम को इफ आई वांट इन अपर डायरेक्शन, ऊपर की तरफ चाहिए, मींस ये पॉजिटिव चाहिए और ये निगेटिव चाहिए। ये कब पॉसिबल होगा बेटा? जब I2 का वैल्यू I1 से ज्यादा होगा। दैट मींस यू आर हैविंग I2 माइनस I1। ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा कि नहीं? Yes, sir. So blindly you cannot say that current is I1 minus I2. It will depends where you are putting plus and where you are putting minus. अगर प्लस ऊपर नीचे माइनस, आंसर होगा I1 माइनस I2। बट अगर नीचे प्लस ऊपर माइनस, तो आंसर क्या होगा? I2 माइनस I1। ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा कि नहीं? टेल मी। Yes, sir. जो भी आपको नोट Yes, करना sir. या जो भी नोट करना है बेटा नोट कर लो। अब मैं इसको केवीएल अप्लाई करके बताता हूँ, मेस में केवीएल कैसे अप्लाई करेंगे। जिसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है सर? I2 ऊपर कैसे जा रहा है सर? I2 ऊपर क्लॉकवाइज में कहां जाएगा? देखो I3 में वोल्टेज तो पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ आई एम है सर। टेलिंग यू दैट डोंट थिंक अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ वोल्टेज। जस्ट यू हैव टू सपोज current direction, either it is clockwise or anti-clockwise. It's up to you. You have to decide the direction of current. If you decide it is in clockwise, but अगर आपका assumption गलत है, that means you will get negative value in the answer. No problem. आंसर में नेगेटिव आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। You have to suppose your own self. Don't think about voltage source, either it is a positive or negative. You can suppose current direction in mesh. यही मैंने डिफरेंस बताया मेश और केवीएल में। केवीएल में आपको टर्मिनल वोल्टेज का देखना पड़ रहा है, बट यहां पर क्या है? मेश का करंट देखना है, वोल्टेज का टर्मिनल नहीं देखना। ये पॉइंट क्लियर हुआ? मेश में क्या करना है? करंट का डायरेक्शन आपको सपोज करना है। सो मैंने दोनों मेश में क्लॉकवाइज सपोज किया है। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और आप देखेंगे भी कोई डिफरेंस नहीं होगा, आंसर हमेशा सेम आएगा। जो मैं मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूं केवीएल का, सिर्फ वही मेथड फॉलो करना, तभी आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आप अपना फॉलो कर रहे हैं, सो डोंट आस्क मी कि सर इसमें ये डिफरेंस क्यों आया, इसमें ये डिफरेंस क्यों आया। बहुत सारे मेथड्स हैं केवीएल सॉल्व करने के, बट आई एम सजेस्टिंग यू इफ यू फॉलो माय मेथड इट विल मेक वेरी वेरी इजी टू यू। बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना। बाकी आपकी मर्जी, व्हाट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू, इट्स योर ओन चॉइस। ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा कि नहीं? टेल मी। ओके, यस सर। मैं इसको इरेज करके मेश एनालिसिस कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। लो, इसमें देखा हमने करंट का डायरेक्शन, तो मैंने यहां लिखा था प्लस और यहां माइनस, और देखा करंट जा रहा है I1। इसमें यहां प्लस और यहां माइनस, करंट जा रहा है हमारे पास I2। हमने देखा R3 के केस में दो केस पॉसिबल है, पर मैंने एक केस लिखा है, कौन सा? प्लस और माइनस। अगर मैंने प्लस यहां पर लिखा और माइनस यहां लिखा, तो टेल मी बेटा यहां पर करंट कितना जाएगा? कौन बताएगा? अगर मैंने गलती से यहाँ प्लस या अगर मैंने प्लस यहाँ लिखा होता, माइनस यहाँ लिखता, तो क्या लिखता? I2 माइनस I1। ओके, या once you decide the direction of current और वैल्यू ऑफ करंट, जो आपने डिसाइड किया ना डायरेक्शन और करंट का वैल्यू, एक बार सभी रेजिस्टेंस पे हो जाने के बाद कंप्लीट हो गया ना, अब आपको क्या करना है? मेश अप्लाई करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे मेश, और किसमें मेश अप्लाई करेंगे? आपको मालूम है स्मॉलेस्ट लूप में करते हैं ना,
तो पहला लूप लीजिए मेश 1, उसका नाम क्या है A B E F। सो हम लोग इसमें मेश अप्लाई करेंगे। अब मेश एनालिसिस अप्लाई करने का मतलब होता है मैं केवीएल अप्लाई करना। तो केवीएल मैंने क्या सिखाया था कि आपको सभी वोल्टेज और सभी रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को ऐड करना है और सभी का एडिशन क्या होना चाहिए 0। That algebraic sum of all EMF and voltage drop should be equal to 0 in a closed loop path। ये क्लोज लूप पाथ है और इस क्लोज लूप पाथ का सभी वोल्टेज और सभी रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का एडिशन क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब मेश एनालिसिस अप्लाई करते समय मैंने आपको क्या बताया था, बाद वाला साइन लेना है। कौन सा लेना है, बाद वाला साइन। टेल मी, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट करूँ ए से, देखिए ABEF और कहां तक जाना है क्लोज लूप पाथ, ए तक वापस जाना है ना, ABEF FA, तो ए तक वापस पहुंच गया। अब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तो टेल मी बाद वाला साइन इसमें कौन सा है, R1 में बाद वाला साइन कौन सा है, माइनस, नेगेटिव माइनस। रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है बेटा, R1 I1 क्या IR होता है। यहाँ पर करंट का वैल्यू I1 है और रेजिस्टेंस का वैल्यू R1 है। अब देखिए ए से बी पहुंच गए, अब बी से ई जाना है। जब बी से ई जाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या मिलेगा आपको, माइनस, या साइन कौन सा है माइनस, तो माइनस आ गया। करंट का वैल्यू क्या है I1, करंट क्या है I1 माइनस I2, नो I1 कैसे है, I1 माइनस I2 है ना, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, दिखाया ना आपको, हाँ करंट है I1 माइनस I2। सो R3 में करंट कितना जा रहा है I1 माइनस I2, बाद वाला साइन क्या है माइनस और रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है R3। अब E पे पहुंच गए, E से F पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब F से A पे पहुंचेंगे, जब F से A पे जाएंगे तो बाद वाला साइन क्या है प्लस V1 इक्वल टू प्लस V1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज कॉल्ड मेश एनालिसिस। टेल मी स्टूडेंट्स, मेश 2, मेश 2 कौन सा है, B C D E B, यही है। सेकंड मेश कौन सा है, यही ना, B C D E B। अब मुझे बताइए कौन बताएगा, पूरा इक्वेशन बताइए। B से C पे जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस I2 R2, यस R2 I2 कोई I2 R2 लिखो, नो प्रॉब्लम। फिर क्या होगा, माइनस V2, वेरी गुड माइनस V2। फिर क्या होगा, देखिए D से ही बेटा पहुंच गए, इसमें कुछ भी नहीं है। अब E से B जाएंगे तो क्या आएगा प्लस प्लस, वेरी गुड। बट करंट कितना फ्लो हो रहा है, फिर से आपने मिस्टेक कर दिया, करंट तो हमारे पास I1 माइनस I2 है ना बेटा, सॉरी सर, हाँ इसमें I2 ने, देखो I2 तो मेश में फ्लो हो रहा है, बट हमें कहां पर देखना है, R3 में देखना है। तो R3 में जो करंट है वो I1 माइनस I2 है, डायरेक्शन क्या है प्लस है, हमने लिखा प्लस करंट I1 माइनस I2, रेजिस्टेंस R3 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज कॉल्ड मेश एनालिसिस। अभी इसमें क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद R1 R2 R3 का वैल्यू गिवन होगा, ये सब गिवन होगा, V1 एंड V2 भी क्या होगा गिवन होगा, क्या अननोन होगा I1 एंड I2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा कि नहीं, टेल मी। यस सर। ओके अभी देखो यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू नहीं गिवन है तो आपको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना था। तो कॉन्सेप्ट सीख गए कि नहीं सीख गए, ओके अब मैं देखिए मैं एक डायग्राम और बना के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे फटाफट बताइएगा, इसको इरेज कर दूं, ओके यस यस सर। सो इसको और पीछे चलते हैं और मैं यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम बनाता हूँ। सपोज ऐसे आप देखेंगे सर्किट डायग्राम, ऐसा सर्किट डायग्राम है। इसको मैंने लिखा V1 V2 V3, दिस इज योर R1 R2 R3 R4 R5। देखिए मैंने वैल्यू नहीं लिखा, हमें आंसर फाइंड नहीं करना, यहाँ में सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है। एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिया
तो हमारे पास कैलसी है, हम डायरेक्ट आंसर फाइंड कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले काम बेटा क्या करेंगे, टेल मी, कौन बताएगा? यस, लूप फाइंड करेंगे। या लूप फाइंड करेंगे, यानी स्मॉलेस्ट लूप फाइंड करेंगे। लूप तो बहुत सारे हैं, तो स्मॉलेस्ट लूप में देखिए एक ये स्मॉलेस्ट लूप है ना, इसको फर्दर क्लासीफाई नहीं कर सकते, तो इस एक लूप को मैंने ऐसे लिख दिया, एक ये लूप है, इस लूप में मैंने करंट सपोज कर दिया। आपको मालूम है जितने लूप होंगे उतने ही करंट सपोज करने पड़ेंगे आपको। तो ये एक स्मॉलेस्ट लूप था, इसमें मैंने I1 करंट सपोज किया, इसको मैंने एक स्मॉलेस्ट लूप सपोज किया I2, और इसको भी मैंने क्या किया I3। 3 मेश थे मेरे पास, स्मॉलेस्ट लूप का मतलब क्या हो गया, मेश हो गया ना, तो तीनों मेश पे मैंने करंट सपोज कर लिया, दैट I1, I2 एंड I3। ये पॉइंट क्लियर हो गया स्टूडेंट की नहीं, टेल मी? यस सर। यस। अब सेकंड स्टेप क्या करेंगे, सभी में डायरेक्शन लिखेंगे। देखिए ये लेफ्ट से राइट जा रहा है, इसका मतलब ये प्लस होगा और ये माइनस होगा या नहीं होगा, और यहाँ पर करंट कितना जा रहा होगा, I1। यस। टेल मी स्टूडेंट, R2 में क्या करंट जा रहा होगा, कौन बताएगा? R2 में क्या करंट जा रहा होगा? इस R2 में क्या करंट जाएगा स्टूडेंट्स? इट विल डिपेंड, किस पे डिपेंड करेगा कि मैंने यहां प्लस लिखा है या यहां माइनस लिखा है, इस पे डिपेंड करेगा या नहीं, टेल मी स्टूडेंट्स? यस। अगर मैंने पहले टर्मिनल में प्लस किया, अगर मैंने यहाँ प्लस लिखा और यहाँ माइनस लिखा, तो अब मुझे बताइए यहाँ पर कितना करंट जाएगा, टेल मी? यहाँ पर करंट का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा? I1 माइनस I2। बेटा देखिए फिर मिस्टेक करो, I1 ये है ना, ये I2 है, ये I2 हमारा लेफ्ट से राइट जा रहा है और I1 राइट से लेफ्ट आ रहा है। ऐसे देखिए, जैसे ये R2 है, तो इस R2 में अगर मैंने यहाँ प्लस लिखा और यहाँ माइनस लिखा, तो इस केस में देखिए I2 इस डायरेक्शन पे जा रहा है और I1 इस डायरेक्शन पे आ रहा है। इस केस में R2 में आ रहा है या नहीं आ रहा स्टूडेंट्स? देखिए अब हमें किसकी डायरेक्शन में चाहिए, I2 हमारा लेफ्ट से राइट, I1 राइट से लेफ्ट, हमें चाहिए कहाँ, लेफ्ट से राइट चाहिए। इसका मतलब I2 की डायरेक्शन पे चाहिए। जब I2 की डायरेक्शन पे चाहिए तो ये करंट क्या होगा, I2 माइनस I2 R2 I2 माइनस I1। ये पॉइंट क्लियर है बेटा कि नहीं, टेल मी? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। यस सर। यस सर। ओके, हमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीखना है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं है इसमें। अब मुझे R3 में बताइए, R3 में डिपेंड करेगा, अगर जो भी प्लस माइनस लेना है तो मैंने यहाँ प्लस लिखा और यहाँ माइनस लिखा, ये मेरे ऊपर है। अगर मैंने यहाँ प्लस लिखा और यहाँ माइनस लिखा तो यहाँ पर करंट क्या जाएगा, बताइए, कौन बताएगा? I1। या वेरी गुड, I3 माइनस I1। हाँ ये देखिए, क्योंकि अगर मैं R3 की बात कर रहा हूँ और यहाँ प्लस दिख रहा है यहाँ माइनस, तो यहाँ पर देखिए कि I3 इस डायरेक्शन पे जा रहा है और I1 इस डायरेक्शन पे जा रहा है, तो मुझे रिजल्टेंट अगर इस डायरेक्शन पे चाहिए तो क्या मिलेगा, I3 माइनस I1। इसमें डाउट है क्या बेटा? अगर किसी को भी डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछना, क्योंकि ये पॉइंट जरूर क्लियर होने चाहिए सभी को। अगर ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो कभी भी मेश एनालिसिस हमारा सही नहीं होगा। ओके नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं R5 में। कौन बताएगा R5 में क्या करंट फ्लो होगा नीचे की तरफ? अगर मैंने इसको प्लस लिख दिया, इसको माइनस लिख दिया, तो क्या करंट फ्लो होगा, I3 बस जा रहा है ना। देखिए R5 में सिर्फ I3 फ्लो हो रहा है ना क्लॉकवाइज में। यस सर। यस सर। I3 के अलावा भी कोई करंट फ्लो हो रहा है क्या बेटा? नो, सिर्फ I3 फ्लो हो रहा है। तो I3 जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो ये ऑब्वियस है कि नहीं कि ऊपर प्लस होगा और नीचे माइनस होगा? यस सर। ओके, वोल्टेज सोर्स का अगर बड़ा टर्मिनल है तो हमेशा पॉजिटिव होता है और छोटा निगेटिव होता है, तो मालूम है ना? यस। लाइकवाइज यहाँ B2 में देखेंगे, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा या नहीं? -V2। या अब मुझे बताइए, अब मैंने इक्वेशन नहीं लिखा, सिर्फ मैं प्लस और माइनस देख रहा हूँ। अब मुझे R4 में बताइए, R4 में दो पॉसिबिलिटी है, या तो प्लस यहाँ होगा या माइनस, तो मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस यहाँ लिखा और माइनस नीचे लिखा। सो नीचे की तरफ करंट क्या जाएगा, कौन बताएगा? यहाँ करंट क्या जाएगा, who will tell me? I2 माइनस I3। वेरी गुड, क्योंकि I2 नीचे जा रहा है और I3 ऊपर जा रहा है, दैट मींस यू विल गेट I2 माइनस I3। अब B1 में मालूम है ये प्लस होगा और ये माइनस होगा।
ये सर्किट में किसी को भी डाउट है क्या अभी तक? नो सर। नो सर। नो ओके ओके, वेरी गुड। तो हम मेश की बात करते हैं। तो मेश के लिए हमें क्या चाहिए? टर्मिनल्स चाहिए। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ऐसे मैंने टर्मिनल्स लिख दिए। ओके, अब मुझे बताइए, मैं लेता हूं पहला मेश। मेश कौन सा? ए, बी, सी, डी, ई, ए पहला मेश हो गया नहीं? ए से स्टार्ट किया, ए तक पहुंच गए, तो ये क्लोज पाथ हो गया। इक्वेशन बताइए मुझे फटाफट, क्या बनेगा? -I1R1 वेरी गुड। then plus यहाँ पर कहां पहुंचे? बी से सी पे कुछ भी नहीं है, सी से डी पहुंचेंगे। सी से डी में क्या है? R3 है। बाद वाला टर्मिनल क्या है? प्लस, मैंने प्लस लिख दिया। करंट कितना फ्लो हो रहा है? I3 माइनस I1, मैंने लिखा I3 माइनस I1। रेजिस्टेंस कितना है? R3। अब क्या आएगा? I2 minus I1 into R2। बट साइन बताओ ना पहले। पॉजिटिव। पॉजिटिव, वेरी गुड। प्लस आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर R2 में जब जाएंगे तो बाद वाला साइन क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। करंट कितना मिलेगा बेटा? I2 माइनस I1। और रेजिस्टेंस कितना मिलेगा? R2। अब ई से ए पे कुछ है क्या? नहीं है, तो क्या पुट करेंगे? इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? टेल मी स्टूडेंट्स। yes sir ओके, नेक्स्ट हम मेश 2 की बात करते हैं। मेश 2 कौन सा है? हम लिखते हैं ई, डी, जी, एफ, ई। ये लिखा यहां से ई, डी, जी, एफ, ई। अब मुझे बताइए इस मेश में क्या आएगा? जब ई से डी जाएंगे, ई से डी जाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे? I minus I1 into R2 माइनस I2 माइनस I3 इंटू R2। अभी R3 कहाँ गया बेटा? अभी तो सिर्फ हम ई से डी पहुंच रहे हैं ना। तो ई से डी में करंट कितना फ्लो हो रहा है? I2 माइनस I1। यस सर, माइनस साइन रहेगा। या वेरी गुड, यही मैं पूछ रहा था, माइनस साइन रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अब हम जब ई से डी जा रहे हैं तो बाद वाला साइन हमें क्या मिल रहा है? माइनस मिल रहा है। करंट का वैल्यू कितना मिल रहा है? I2 माइनस I1 मिल रहा है। रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है? R2 मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा? माइनस I2 माइनस I1 R2। इसमें डाउट है क्या बेटा? किसी को भी डाउट है क्या? टेल मी। नहीं। ओके, नाउ टेल मी नेक्स्ट स्टेप D2G। नेक्स्ट स्टेप क्या? D2G। तो बता, इस मेश में पहले ई से डी गए, अब डी से जी जाएंगे। तो या टेल मी क्या है? क्या आएगा? माइनस I2 माइनस I3 R2 माइनस I2 माइनस I3। ब्रैकेट में लिखेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। बिकॉज बाद में साइन क्या मिलेगा? माइनस, करंट वैल्यू I2 माइनस I3 एंड रेजिस्टेंस वैल्यू R4। वेरी गुड। देन G2F कुछ भी नहीं है। फिर F2E जाएंगे। जब F2E जाएंगे तो बाद वाला साइन क्या मिलेगा? प्लस V1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर V1। अब आई होप इसमें किसी को भी डाउट नहीं बचा है। यू ऑल आर कंफर्टेबल विद दिस। मेश 3 दैट DCHGD। फटाफट बताइए, कौन बताएगा? माइनस इन ब्रैकेट I3 माइनस I1 R3। यस, वेरी गुड। फिर क्या मिलेगा? माइनस क्या मिलेगा? I3 R5। यस, यहां पहुंच गए ना? बाद वाला साइन क्या? माइनस, रेजिस्टेंस R5 V3 करंट वैल्यू I3। दैट मींस माइनस I3 R5। देन अबाउट वोल्टेज सोर्स, बाद वाला साइन क्या मिलेगा? माइनस V3 देन माइनस V2। अब कहां पहुंचे? R4 में पहुंचेंगे। सो प्लस I2 वैल्यू क्या है? I2 माइनस I3 इंटू R4 इक्वल टू 0। ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया बेटा कि नहीं? टेल मी। अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया तो आपका मेश एनालिसिस क्लियर हो गया। सिर्फ इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपके पास कैलकुलेटर होगा, कैल्सी होगा, तो आप कैल्सी से इक्वेशन सॉल्व करना सीख सकते हैं। इफ यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व, आई विल एक्सप्लेन in next lecture, either tomorrow or day after tomorrow, either Saturday or Sunday I will take your extra lecture.
which I missed at the Tuesday. So मैं सिखा दूंगा आपको कैल्सी से कि आपको कैसे यूज करना है. Right now I don't have कैल्सी along with me, so I'm not able to show you how to use. Okay? I2 और I3 रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है सर. हाँ? रिवर्स में जा रहा है सर. किसी भी डायरेक्शन में जाने दो बेटा. पहले हमने सभी का देख लिया ना कि पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे क्या करंट जा रहा है. मेष वाला में दिक्कत हो रहा है सर. किसमें दिक्कत हो रहा है? आप पहले से भी सीख चुके हैं क्या कहीं पर? नहीं सर. अगर आपने पहले सीखा है तभी आपको कंफ्यूजन होगा, अदरवाइज क्या कंफ्यूजन है बताइए बेटा मुझे. किस मेष में दिक्कत है आपको? I2 माइनस I3 कैसे हो रहा है? किसमें I2 माइनस I3? मैंने कहाँ लिखा I2 माइनस I3? इस केस में ना I2 माइनस I3. अब मुझे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, ये R4 है. अगर मुझे यहाँ प्लस लिखना है यहाँ माइनस लिखना है. R4 में दो करंट जा रहा है, एक नीचे जा रहा है I2 और एक ऊपर जा रहा है I3. देखिए I2 नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हाँ सर. R4 में दो करंट जा रहा है ना, एक I2 और एक I3. यस सर. I2 नीचे जा रहा है, I3 ऊपर जा रहा है. I3 ऊपर जा रहा है. अब मुझे किस डायरेक्शन पे चाहिए? नीचे की तरफ चाहिए. क्यों नीचे की तरफ चाहिए? क्योंकि ऊपर मैंने प्लस लिखा है. नीचे कब मिलेगा? जब I2 I3 से ज्यादा होगा. तो रिजल्टेंट क्या आएगा? I2 माइनस I3 ही तो आएगा ना बेटा. यस सर. पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं है? पहले मेश अप्लाई करने से पहले सभी रेजिस्टेंस पे कितना करंट होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, एक बार आपने मेंशन कर दिया. उसके बाद स्टार्ट करो, बाद वाला साइन लो, वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप को ऐड करो, जीरो कर दो, आंसर आ जाएगा. कोई मिस्टेक होने का चांस नहीं. अगर आपने कहीं और से भी पढ़ा और यहां भी पढ़ा तो आप जरूर जंबल हो जाएगा आपके पास और कंफ्यूजन में आप रॉन्ग कर सकते हैं. फॉर मेश एनालिसिस जो भी आपको बुक भी दिया हुआ है, बुक का भी फॉलो नहीं करना. जो भी मैंने एक्सप्लेन किया इसी को फॉलो करिएगा, प्रॉपर मिलेगा और मिस्टेक्स नहीं होंगी. अदरवाइज अगर आप डिफरेंट फॉलो करते हैं तो 70 to 80% स्टूडेंट्स सिर्फ मेश एनालिसिस की वजह से फेल हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि मेश एनालिसिस हम लोग सभी में यूज करने वाले हैं. आइदर सुपरपोजिशन, नॉर्टन, थेवेनिन, मैक्सिमम पावर, कोई भी थ्योरम होगा सभी के अंदर हम लोग मेश एनालिसिस जरूर यूज करेंगे. और अगर आप मेश एनालिसिस यूज नहीं कर पाएंगे तो ये सारी थ्योरम्स आप रॉन्ग कर देंगे. दैट इज द प्रॉब्लम. इसलिए मेश एनालिसिस पे मैं बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूं. मेश एनालिसिस अगर आपको राइट हो गया तो बाकी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी. कैसे होगा हम देखते हैं. एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं. ओके, ये पॉइंट सभी को कंफर्टेबल है ना स्टूडेंट्स? यस सर. ओके, करेंगे I1 और सेकंड मेश पे करंट सपोज करेंगे I2. डाउट है क्या किसी को? नहीं होगा. बताइए 6 ओम में ये टर्मिनल प्लस होगा और ये माइनस होगा कि नहीं? यस सर. क्यों होगा? क्योंकि हमने क्लॉकवाइज सपोज किया. क्लॉकवाइज का मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहा है और करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाता है, इसलिए ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, तभी I1 इस तरफ जाएगा. लाइकवाइज ये प्लस होगा और ये माइनस होगा और करंट क्या जाएगा? I2. इसलिए करंट क्या जा रहा है? I1. अब मेरे पास क्या बचा? सिर्फ 4 बचा. सो 4 में दो कंडीशंस पॉसिबल है. एक यहाँ प्लस हो सकता है, यहाँ माइनस, या यहाँ प्लस हो सकता है, यहाँ माइनस. अगर मैंने प्लस को ऊपर लिखा तो करंट का डायरेक्ट करंट क्या हो जाएगा? I1 माइनस I2 होगा या नहीं होगा? टेल मी स्टूडेंट्स. सर अगर मैंने ऊपर माइनस लिखा होता तो क्या हो जाता? I2 माइनस I1. यस. ओके, नाउ अगर मैं इसमें टर्मिनल लिखूं A, B, C, D, E, F. देखिए जब आप सॉल्व करेंगे तो हमेशा आपको टर्मिनल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अभी हमारी स्टार्टिंग है, कोई मिस्टेक ना हो जाए इसलिए मैं टर्मिनल लिख रहा हूं.
अदरवाइज अगर आप मेस 1 भी लिख देंगे ना तब भी काम चलेगा, बट कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी स्टार्टिंग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो मेस 1, और मेस 1 कौन सा है? ए बी सी डी ए, यही है ना मेस 1? यस सर। अब मुझे बताइए केवीएल अप्लाई करिए मेस 1 में, क्या आएगा? फटाफट बताओ मुझे। कौन बताएगा? टेल मी। माइनस I1 इंटू 6 वेरी गुड, I1 इंटू 6, फिर क्या होगा? माइनस 4 into I1 minus. Yeah, tell me. The girl who is telling, tell me answer. Yeah. Minus 6 I1 minus 4 into I1 minus I2 plus 12 is equal to 0. वेरी गुड, वेरी गुड। किसी को डाउट है क्या इसमें? बताइए स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर बाद में साइन है माइनस, रेजिस्टेंस है 6 और करंट है I1। इसमें बाद वाला साइन है माइनस, करंट है I1 माइनस I2 और रेजिस्टेंस है 4, और यहाँ पर क्या? प्लस 12। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 6 I1 माइनस 4 I1 प्लस 4 I2 प्लस 12 इक्वल टू 0। यही होने वाला है कि नहीं? टेल मी स्टूडेंट्स। यस। मैंने 4 का मल्टीप्लाई करा दिया तो माइनस 4 I1 माइनस माइनस प्लस 4 I2 प्लस 12। इसको और सिंप्लीफाई करिए बेटा, ये माइनस 6 I1 और माइनस 4 I1 तो क्या हो जाएगा? माइनस 10 I1 प्लस 4 I2 इक्वल टू माइनस 12। तो कैलसी में पुट करने के लिए इस फॉर्म का इक्वेशन होना चाहिए। कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे, और जो भी वेरिएबल्स है I1 I2 क्या है? वेरिएबल्स है, तो जो भी वेरिएबल्स है उसके साथ लेफ्ट पे और कांस्टेंट को राइट पे लिखना होता है। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। कितने इक्वेशंस बनेंगे? जितने मेस होंगे उतने ही इक्वेशन बनेंगे आप। अब हमारे पास सेकंड मेस है बेटा, मेस 2। Who will tell me the answer for मेस 2? मेस 2 पहले बताएंगे कौन सा है? बी ई एफ सी बी। अब मैं पूछता हूं कोई किसी एक से, अब वो बताएगा, जिससे मैं पूछता हूं ना वो बताएगा। 1 सेकंड, कौन बताएगा मुझे? प्रोजेक्टा, प्रोजेक्टा, टेल मी क्या होगा इक्वेशन? Yes, sir. Minus 2 I2 plus 6 plus 4 into I1 minus I2 is equal to 0. Tell me once again, repeat. Minus 2 I2 plus 6 plus 4 into I1 minus I2 is equal to 0. Very good, very good. So this is 2, second equation. इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। So minus I2, sorry 2 minus 2 I2 plus 6 plus 4 I1 minus 4 I2 equal to 0। सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा? I1 पहले लिखना, देखिए I1 हमेशा पहले, I2 बाद में, तो 4 I1 minus 6 I2 equal to minus 6 equal to 0। सॉरी, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा कि नहीं? टेल मी सभी को। यस सर। अब यहाँ से सिंपल I2 माइनस I1 आएगा ना? यस सर। मैंने बोला ना, मैंने अभी तक सिखाया कि I2 माइनस I1 कहीं पर भी? Why you are following that particular case which you are already studied? मैंने बोला जो भी पढ़ के आए हैं या कहीं से सीखा है वो मेथड यहाँ अप्लाई मत करिए। मैंने क्या बोला? आपको चेंज नहीं करना। 4 ओम पे एक बार सपोज किया ना आपने कि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस और करंट I1 माइनस I2, तो क्यों चेंज कर रहे हैं I2 माइनस I1? सिर्फ बाद वाला साइन लिखो ना, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो अगर आप बोल रहे हो ना मैं करके दिखा देता हूं, बट बार बार फॉलो मत करना, मिस्टेक हो जाएगा। आपके अकॉर्डिंग आपने क्या किया मैं बताता हूं। आपने क्या किया? आपने किया यहाँ पर इसको लिखा प्लस, इसको लिखा माइनस, और आपने अप्लाई किया तो क्या लिखा? माइनस 2 I2 प्लस 6। फिर आपने क्या किया इसके अकॉर्डिंग? बाद वाला साइन, तो आपने लिखा होगा माइनस 4 और फिर लिखेंगे I2 माइनस I1। जब यहाँ प्लस हो जाएगा तो करंट क्या फ्लो होगा? I2 माइनस I1। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो, सिंप्लीफाई करो। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 4 I1 माइनस 6 I2 इक्वल टू माइनस 6। इज देयर एनी चेंज? कोई चेंज है क्या? अगर आप ये मेथड करेंगे ना तो बार बार आप लोग डायरेक्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मेथड एक्सप्लेन नहीं किया। व्हाटएवर द मेथड आई एक्सप्लेन, प्लीज फॉलो दैट मेथड।
If you don't want to follow, you can follow whatever you want. I cannot explain anything for you, because whatever I am teaching for you, please follow that method. मुझे मालूम है कि आप बहुत इंटेलिजेंट जो बनने का कोशिश करेगा, एग्जाम में उसका क्या हाल होने वाला है. सो प्लीज, मैं ज्यादा चीजें नहीं सिखा रहा, जो चीजें सिखा रहा हूं सिर्फ डिट्टो वही फॉलो करो, कभी भी मिस्टेक नहीं होगा. इट्स माय प्रॉमिस. बाकी जो भी आपको करना है इट्स अप टू यू. डोंट चेंज डायरेक्शन ऑफ करंट. एक बार मैंने डायरेक्शन जो सपोज कर लिया, दैट प्लस एंड माइनस, डोंट चेंज इट. सिर्फ वैल्यू लिखोगी क्या आने वाला है. ओके स्टूडेंट्स, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? टेल मी. यस सर. ये जो मैंने एक्सप्लेन किया, जो अभी बाद में एक्सप्लेन किया वो मत सुनो, वो उसके लिए था जिसने अभी डाउट पूछा था. बट जो मैंने ये दो इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया वो समझ में आया कि नहीं? टेल मी. यस सर. ओके, Yes, sir. यस. ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, इसको सिंप्लीफाई Yes, sir. करके एक बार आंसर वेरीफाई कर लेते हैं क्या आंसर आने वाला है. हम देखो इनको सिंप्लीफाई सर करेंगे. I1 या सॉल्व किया क्या आपने? हाँ I1 2.182 आया और Yes. I2 2.455. ओके, ये आपका आंसर आया है. नो प्रॉब्लम. आपने कैलसी से सॉल्व किया या डायरेक्ट? सर कैलसी से किया. हाँ ठीक है, कैलसी से सॉल्व करना अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है. नहीं आता है तो आप सीख लीजिए, यूट्यूब से सीख लीजिए. अदरवाइज आपको ज्यादा डाउट होगा तो मेरे से पूछिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे करना है. वैसे अगर आप 11 प्लस में जब कैलसी अलाउ नहीं होता था तो आप कैसे सिंप्लीफाई करते थे? इनके किसी भी एक वैल्यू को सेम करके हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड. तो देखिए इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? टेल मी स्टूडेंट्स. -20I1 प्लस 8I2 इक्वल टू -24. यही आने वाला है. टेल मी. 2 से मल्टीप्लाई करिए. इक्वेशन 2 में 5 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा? 20I1 माइनस 30I2 इक्वल टू 30. तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो क्या आ जाएगा? -22I2 इक्वल टू क्या आएगा? -54. तो क्या हो जाएगा? 54/22, दैट इज इक्वल टू 2.455 एम्पियर. I2 का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, इधर I1 हो या I2 में. तो मैंने क्या किया, I2 का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट किया, सब्स्टिट्यूट. ऐसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा? 4I1 माइनस 6 इंटू 2.45 इक्वल टू -6. तो क्या हो जाएगा? 4I1 माइनस, अब यहां से बेटा बताइए क्या होगा, मल्टीप्लाई करके बताइए. 56 2 14.70 इक्वल टू -6. तो क्या हो जाएगा? 4I1 इक्वल टू -6 प्लस 14.70. तो हो जाएगा 4I1 इक्वल टू, यहां से क्या बचेगा? 8.70. ओके, सो I1 इक्वल टू 2.18 एम्पियर. ये जो हम लोग मैन्युअली सॉल्व करते थे, ये आपने 12th में सीखा होगा ना, एल्जेब्रिक जो सॉल्व करते थे आप. दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू और नॉट? टेल मी स्टूडेंट्स. या बट डोंट फॉलो दिस. जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना, ऐसे मत करिएगा, आप कैलसी से सॉल्व करिएगा, बिकॉज बहुत सारा टाइम लग जाएगा अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे. यहाँ पर आपके पास सिर्फ 2 अननोन है, I1 और I2, आसानी से सॉल्व हो गया. बट जब आपके पास 3 अननोन होंगे तो आप क्या करेंगे? एक को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, फिर 2 को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. सो काफी टफ हो जाएगा आपके लिए. सो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग मैन्युअली, प्लीज फॉलो कैलकुलेटर. ओके स्टूडेंट्स. समझ में आया स्टूडेंट्स सभी को? Yes sir. Yes sir. Yeah, I am erasing this and I am putting second question. Yeah, please. Second question बताइए. इसमें 3 में हो जाएगा. सर आपने जो मेथड बताया वो हर एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है ना? या हर एक एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है और हर एग्जाम में सेम आंसर आएगा, हर क्वेश्चन के लिए सेम आंसर आएगा. ओके सर. कुछ देखिए मेथड अलग नहीं है, सिर्फ मैंने मेथड को सॉर्ट कर दिया है. उसमें क्या होता है कि हम बार बार जब करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं ना, तो एग्जाम में हम लोग माइनस और प्लस की मिस्टेक कर देते हैं. किसी भी एक रेजिस्टेंस में अगर प्लस और माइनस का अगर आपने मिस्टेक कर दिया तो आंसर नहीं मैच करेगा, और आंसर मैच नहीं करेगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा.
तो जो मैंने एक्सप्लेन किया ना उसको मैंने शॉर्ट कर दिया, यानी मैंने बहुत सारी चीजें बताने की जगह पे सिर्फ एक ही चीज बताया और एक ही कॉन्सेप्ट को हर क्वेश्चन में अप्लाई किया। उससे क्या होगा कि बार बार हमें डायरेक्शन चेंज नहीं करना पड़ेगा, एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये ट्रिक मैंने बताया। ओके, यस सर। यस, नाउ फॉलो दिस क्वेश्चन। सर इसमें एक रेजिस्टेंस दिया ही नहीं है। वैल्यू कुछ भी सपोज कर लीजिए, यहाँ पे 2 सपोज कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। I1 I2 I3 डायरेक्ट आप ऐसे सपोज कर लेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस इज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। टेल मी इस पे क्या करंट जाएगा 6 ओम में? टेल मी। -6 into I1। आस्किंग द इक्वेशन, सिर्फ करंट का वैल्यू बताइए। I1 होगा, I1 क्या इस पे करंट क्या जाएगा बेटा? होगा नहीं, I1 नीचे I2 ऊपर, तो क्या आएगा I1 माइनस I2 प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर करंट बताइए क्या आएगा? I2 माइनस I3। आसान हो जाएगा, इसमें बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। इसमें बताइए क्या होगा? I3 इस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखिए मैं लिख नहीं रहा, ABCD लिख नहीं रहा, मैं पहले मेष में बोला हूँ, पहले मेष में KVL अप्लाई करके बताइए फटाफट क्या आएगा? ये आएगा कि नहीं आएगा स्टूडेंट्स बताइए? यस सर। फर्स्ट में देखिए, माइनस साइन रेजिस्टेंस 6 करंट I1, माइनस साइन रेजिस्टेंस 2 करंट I1 माइनस I2। देखिए फिर क्या है, प्लस 12 इक्वल टू 0। सेकंड में बताइए, इसमें बताइए कौन बताएगा मुझे? टेल मी, इसमें बताइए क्या भी सेकंड में, इसमें एनीवन टेल मी, कोई भी बताइए। -I2 6 -6 I2, वेरी गुड। अब देखिए, अब मुझे बताइए बेटा, ये जो 6 था वो रेजिस्टेंस का वैल्यू है क्या? नहीं सर। वोल्टेज है ना बेटा, हमने वोल्टेज के साथ कहीं पर करंट का मल्टीप्लाई किया है क्या? नहीं, यहाँ पर 12 था, हमने 12 लिखा। क्यों? क्योंकि हमें या तो वोल्टेज चाहिए या वोल्टेज का ड्रॉप चाहिए, हमें कहीं पर भी पावर थोड़ी ना चाहिए। वोल्टेज के साथ करंट मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर हो जाएगा ना बेटा, वो V into I पावर होता है ना, बट हमें यहाँ पर पावर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? सिर्फ वोल्टेज चाहिए। तो अगर हमें वोल्टेज चाहिए तो 6 के साथ I2 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। हमें सिर्फ वोल्टेज चाहिए ना बेटा, तो यहाँ पर वोल्टेज दिया हुआ है तो करंट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसीलिए यहाँ पर मैंने करंट नहीं लिखा। दे ओके, -6। फिर बताइए क्या होगा? -I2 -3 -2 I2 I3 होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर साइन माइनस है, करंट I2 I3 है और रेजिस्टेंस 2 है। फिर क्या होगा? इस पे आइए, इस पे क्या होगा? प्लस 2 I1 माइनस I2 ब्रैकेट ये इक्वल टू 0। -6 क्यों? -6 यहाँ लिख दिया ना मैंने, पहले लिख दिया, पहले लिखा। हो गया। अब देखिए, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो बार बार साइन चेंज करने को बोल रहे हैं, जिसने भी अभी मेरा कॉन्सेप्ट फॉलो किया वो मत सुनिएगा। जिन स्टूडेंट्स को डाउट था कि सर I2 I1 करना है, बेटा देखिए अगर आपको I2 I1 करना है तो पॉसिबल है, लेकिन देखिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं नहीं बता रहा आपको। क्या करेंगे आप यहाँ प्लस लिखेंगे और यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे और यहाँ माइनस लिखेंगे तो डायरेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा और ये करंट का डायरेक्शन, करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? I2 I1। अब अप्लाई करके देखिए, जब आप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? -6 -2 I2 I3। अब यहाँ पर बाद वाला साइन क्या मिलेगा आपको? माइनस मिलेगा, प्लस नहीं मिलेगा। तो माइनस करंट क्या हो जाएगा? I2 I1 हो जाएगा और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो इसमें अगर माइनस आप कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा आपके पास? देखिएगा +2 I1 I2 इक्वल टू 0। अब मुझे बताइए इन दोनों में कोई चेंजेस है क्या?
कोई चेंजेस नहीं है। सो दोनों मेथड सेम है बेटा, सिर्फ मैं आपको बार बार डायरेक्शन चेंज ना करना पड़े, डायरेक्शन चेंज करने से मिस्टेक ना हो, इसलिए ये कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा मैं आपको। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब भी नहीं हुआ तो सॉरी गाइस, फिर इसके बाद मैं कुछ इस पॉइंट में नहीं बोल सकता अगर आपको अभी भी डाउट है। ओके, इस फर्स्ट मेथड में अगर किसी को डाउट है तो मुझे बताइए। यहाँ पर डाउट है क्या किसी को बेटा? नो सर। वेरी गुड। अब हम क्या कर, अब थर्ड में बताइए, थर्ड में इक्वेशन क्या बनेगा? -2i प्लस 2 प्लस 2i2 माइनस i3 इक्वल टू 0। यस सर। अब आप तीनों को कैलसी से सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, पहले i1 i2 के फॉर्म में करते हैं। मैं पहला इक्वेशन बता रहा हूँ, हमेशा कैसे लिखेंगे, -6i1 माइनस 2i1 प्लस 2i2 प्लस 12 इक्वल टू 0। कैसे लिखेंगे? -8i1 प्लस 2i2 इक्वल टू -12, इक्वेशन 1। सेकंड को क्या सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए -6 माइनस 2i2 प्लस 2i3 प्लस 2i1 माइनस 2i2 इक्वल टू 0। यहाँ क्या लिखेंगे? देखिए 2i1 अब माइनस 2i2 माइनस 2i2, तो यहाँ क्या हो जाएगा? -4i2 प्लस 2i3 इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। जब सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ऐसा ही बनेगा। नाउ थर्ड इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड इक्वेशन में क्या हो जाएगा? प्लस 2i2 माइनस 2i3 दैट इज 4i3 हो जाएगा इक्वल टू -2, दैट इज इक्वेशन 3। इन तीनों में किसी को डाउट हो तो मुझे बताइए। डाउट है क्या किसी को? सिंप्लीफाई करना सभी को मालूम होगा। पहले i1 का टर्म लिखेंगे, फिर i2, फिर i3। अगर नहीं है i1 i2 i3 तो उसको 0 सपोज किया जाता है। क्या सपोज किया जाता है? 0। अब आप ये सिर्फ कोफिशिएंट को कैलसी में पुट करिएगा, यू विल गेट i1 i2 एंड i3। सर बोलो वैल्यूज निकाला है मैंने। हाँ, वैल्यूज निकाला है। फाइंड किया क्या? आई डोंट हैव एक्चुअली आंसर, आंसर नहीं है। आप जो भी निकाला है आप वेरीफाई कर लीजिएगा। ओके सर यहाँ पे क्वेश्चन में 2 ओम पे करंट पूछा है, पहले 2 ओम पे पूछा फॉर एग्जांपल, दोनों मैंने 2 लिख दिया, नो प्रॉब्लम। अगर इस पे पूछा तो इस 2 ओम पे कितना करंट फ्लो हो रहा है बेटा बताइए मुझे? i2 माइनस i3 फ्लो हो रहा है। फाइंड किया, मुझे वैल्यू बताइए क्या है i1 का? 5/70 जो भी है, जो भी है मैं लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये 2 आया, ये 3 आया, ये 5 आया, मैंने लिख दिया रैंडम। ये आंसर नहीं है बट मैं बता रहा हूँ ये आंसर आ गया फॉर एग्जांपल। अब मुझे आंसर फाइंड करना है 2 ओम रेजिस्टेंस पे। सो 2 ओम रेजिस्टेंस पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है? i2 माइनस i3। अब i2 का वैल्यू बेटा क्या है? 3, i3 क्या है? 5, तो क्या आ गया? -2 एम्पियर। इसका मतलब क्या है? -2 एम्पियर ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि +2 एम्पियर नीचे से ऊपर जा रहा है, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? हाँ। तो इसका आंसर ऐसे कैसे लिख देंगे? अगर -2 एम्पियर आपके पास आंसर आया फॉर एग्जांपल, इसका मतलब क्या है? करंट इज फ्लोइंग डाउन टू अपर, नीचे से ऊपर जाएगा और करंट का आंसर क्या होगा? 2 एम्पियर। बट अगर ये पॉजिटिव 2 एम्पियर आया होता तो क्या लिखते? ऊपर से नीचे जाएगा और आंसर क्या होगा? 2 एम्पियर। सिर्फ ऐसा लिख देंगे, दैट्स इट। गॉट इट स्टूडेंट्स? यस सर। आई होप ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सभी को। आया क्या समझ में सभी को? यस सर, यस सर। किसी को डाउट तो नहीं है? यस सर। 1 सेकंड मैं आपको सिर्फ अटेंडेंस दे रहा हूँ, अटेंडेंस मार्क करने के लिए। ओके, सो प्लीज मार्क योर अटेंडेंस एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। मैं जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रुको मैं रैंडम दे देता हूँ, तो इसमें आंसर भी मेंशन किया है बिकॉज इसमें। ओके या ये होमवर्क है, इसमें मैंने कुछ का आंसर भी मेंशन किया हुआ है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं।
ये स्क्रीनशॉट इनको प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में कोई भी जो आपको डाउट होगा उसका मैं एक दो